হেডলাইন্স ত্রিপুরায় স্বাগত। ডাক্তার শৈলেশ যাদব পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক। একাধারে উনি ডাক্তার, একাধারে উনি আইপিএস, একাধারে আইএস। আমরা গতকালকে রাত্রে একটা ঘটনা আমরা দেখেছি যে মানিক্য কোটে একটা বিয়েবাড়িতে উনি হঠাৎ অভিযান করেছেন। এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক, তুমুল সমালোচনা সোশ্যাল মিডিয়াতে। আজ আমরা ওনার সাথে কথা বলবো এই বিষয়ে, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেটিজনদের মধ্যে একাংশ বলছেন বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং একাংশ বলছেন সঠিক কাজ করেছেন উনি। এবার আমরা আজকে ওনার কাছ থেকে সরাসরি জানতে চাইব যে গতকালকে ঘটনা সঠিক কি হয়েছিল, উনি কি বলবেন গতকালকের ঘটনা নিয়ে, এবং সাধারণ দর্শকদের কাছে যারা রাজ্যবাসী আছেন, শহরবাসী আছেন, যারা আজকে হেডলাইন্স ত্রিপুরার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার্স সেটা শুনতে চাইছেন। যখন কালকে আমরা সেটা লাইভ ছেড়েছিলাম, দেখেছি আমরা প্রায় লক্ষাধিক লোক এটা দেখেছেন, লাইভ দেখেছেন। তো সেই ব্যাপারে আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে ওনার যে যুক্তি, ওনার যে লজিক বা ওনার যে বক্তব্য আজকে আমরা সরাসরি আপনাদের কাছে উপস্থাপনা করব। কোনো ধরনের কাটছাট ছাড়া উনি যা বলবেন সেটাই আমরা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। নমস্কার ডক্টর যাদব। কালকে যে ঘটনা হয়েছিল, আপনি হঠাৎ করে মানিক্য কোটে বিয়েবাড়িতে ঢুকেছেন। ঢোকার পরে আপনি হঠাৎ করে এই প্ল্যানটা কিভাবে করলেন এবং কি হয়েছিল সঠিক যদি একটু আমাদের বলেন। আমি কালকে রাত্রিবেলা 10:30 নাগাদ আমাকে একটা নিউজ পাওয়া গেল কি জিবি হাসপাতালে যে কোভিড হসপিটাল আছে ওখানে যে এয়ার কন্ডিশনিং আছে ওখানে কিছু প্রবলেম আছে, আর এটা আশঙ্কা ছিল কি এটা ইট মে বি এ স্যাবোটাজ বিকজ সিরিয়াস পেশেন্টস ওয়ার অ্যাডমিটেড দেয়ার। তো আমি ভাবলাম কি আমাকে স্বয়ংই যাইতে হবে। তো ওই সময় আমি 10:45 আমি জিবি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে যে কিছু প্রবলেম ছিল ওটা সলভ করা হয়েছিল, এবং তারপরে ওখান থেকে আমি আমার যে অফিসিয়াল রেজিডেন্স আছে ওখানে যাচ্ছিলাম। তো আমাকে একটা ফোন কল পাওয়া গেল একজন সাধারণ নাগরিক আগরতলা শহরের। উনি বললেন যে আপনারা তো নাইট কারফিউ জারি করেছেন করোনা আক্রান্ত থেকে বাঁচাবার জন্য লোককে, কিন্তু অনেকগুলি বিয়ে বাড়িতে এটা কোনো রকম ফলো করা হচ্ছে না। এবং উনি দুটা ম্যারেজ হলের নাম বললেন যে গোলাপ বাগান এবং মানিক্য কোটে এখনও এখানে ফুল স্ট্রেংথ বিয়ে চলছে। সম্পূর্ণ যে যতগুলো রুল রেগুলেশন আছে এটাকে বাই শোয়িং ফিঙ্গার টু দ্যাট রুল রেগুলেশন। তো আমি ওই সময় পুলিশ যে এডিশনাল এসপি আছেন ওনাদেরকে কল করলাম যে আপনার পুলিশের লোক ওখানে পাঠাও। আমি তো ওখানে বাইরে আছি, তো আমি ওখানে গিয়ে একবার দেখে নেব কী প্রবলেম। তারপরে আমি গেলাম ওখানে যে গোলাপ বাগান যে ম্যারেজ হল আছে। তো ওখানে দেখে গেলে যে ম্যারেজ সেরেমনি যেটা আছে ওটা শেষ, কিন্তু ওখানে সম্পূর্ণ মোর দেন 100 পিপল দে ওয়ার হ্যাভিং পার্টি কাইন্ড অফ এ থিং। ব্যান্ড বাজাও ছিল, কেটারিং স্টাফ সমস্ত ওখানে, এভরিবডি উইদাউট মাস্ক। এবং দ্যাট ওয়াজ অ্যারাউন্ড 11:15, 11:20. So I asked them, are you not aware that this night curfew is there? Then they said they are aware, but whatever they are doing is right. In fact, they tried to argue. वो लोग एक तरीके से अपना तर्क बोलना चाहते हैं कि इसका ज़रूरत क्या है। इस प्रकार से इनका कुछ बात थी। तो उनको समझाया गया, देखिए अभी कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप लोगों को ज़रूरत है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएं। इस वजह से ये सरकार ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है। हमने धारा 144 का ऑर्डर भी पास किया है, और ये आप लोगों की अच्छाई के लिए है। फिर उसका उनको वहाँ से निकाला गया। कुछ लोग वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे थे, बदतमीजी करने की भी कोशिश कर रहे थे। पुलिस वहाँ पे थी नहीं हमारे साथ, जो थे हमारे जो खुद के बॉडीगार्ड है वही लोग थे। उसके बाद से हम दूसरे वहाँ के पास में ही जो दूसरा मानिक्य कोट जो मैरिज हॉल है वहाँ गए, और वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन ही थी। इनफैक्ट वहाँ पे तो लोग और भी ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे थे कि हमारे पास परमिशन है तो हम क्यों नहीं करेंगे। एंड आई विल से दैट सी कई लोगों को ऐसा लगा हुआ कि शायद जिला शासक को खुद जा करके वहाँ ये सब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि आप ये मत देखिए क्या हुआ, आप ये देखिए कि किस भावना से किया गया है। भावना ये है अभी जो हमारे राज्य की अवस्था है, अभी आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है पूरे देश में कोरोना वायरस किस तरीके से फैला हुआ है। लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटल बेड के, और सैकड़ों की संख्या में डेली लोग मारे जा रहे हैं पूरे देश में। हम लोग अभी तक भाग्यशाली हैं कि अभी हमारे यहाँ पीक पिछली बार भी देर हुआ था, इस बार भी देर होने के चांस है। अभी हमारे पास समय है कि हम इसको जितना रोक सकें, जिस भी प्रकार से रोक सकें उसको रोकें। इसके लिए बहुत कुछ मेजर्स लिए गए हैं।
सिर्फ एक ये नहीं है कि नाइट कर्फ्यू है। लोग बोल सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू से क्या फ़ायदा होने वाला है, दिन में तो सभी लोग घूमते हैं। ज़रूरत पड़ने से दिन में भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। अभी जो हालात है उसके हिसाब से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। मार्केट्स में हम हर जगह पे हम मास्क इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, थोड़ा अवेयरनेस कर रहे हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे हमने भी देखा है क्या क्या कुछ चल रहा है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंसल्ट करने की कोशिश की गई किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। हमें किसी से कोई व्यक्तिक परेशानी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो अभी भी उन लोगों का नाम नहीं जानता जिन लोगों का वहाँ पे मैरिज पार्टी हो रहा था या शादी हो रहा था। तो व्यक्तिगत या ये इन सब चीज़ों की कोई बात ही नहीं होती है। हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इस शहर और इस ज़िले के आम जनता के लिए, उसके लिए, उसकी भलाई के लिए हम चाहते हैं कि जो कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं उसको लोग फॉलो करें। एक सीरियसली ले, थोड़ा सा सीरियसली, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ कोरोना वायरस नहीं आएगा। अचानक ये विस्फोट हो रहा है। इस बार जो कोरोना वायरस का जो द्वितीय लहर है, सेकेंड वेव, ये हर जगह पे अचानक आया है। पूरे देश, इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है। इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। लोग सो भी नहीं पाते हैं। कल रात को मैं गया था जीबी अस्पताल में, हमने देखा हमारे जो डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो अपनी हर चीज़ को खतरे में रख करके वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार रात भर ड्यूटी करते हैं। हमारे लोग वैक्सीनेशन में, आप लोगों को पता होगा अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन में मुझे जहाँ तक लगता है अगरतला शहर में परसेंटेज वाइज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड। ये अपने आप तो नहीं हुआ, हमारे लोगों ने मेहनत की है, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की है। दिन रात इसकी तैयारी होती है, कैसे करें, कहाँ जाके करें, कैसे करें। अगरतला में टोटल 5,40,000 लोग हैं। 2,08,000 लोगों को अगरतला में सिर्फ वैक्सीन लग चुका है, जो कि पूरी जनसंख्या का 40% है, 40%। और अगर 18 साल से ऊपर वालों की बात करें तो हमारी जनसंख्या है 3,45,000 जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं। तो इसके हिसाब से 60% लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। ये किसी भी शहर में नहीं हुआ है। आप पूरा नेशनल एवरेज देखिए, 1 से 3% के बीच में है। हम अगर आज के डेट में 60% वैक्सीनेट करके हमारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ लोगों की लापरवाही से, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा है, हमें पता है, कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि वो कानून के शायद ऊपर है। ये गलत बात है। तो इस वजह से ऐसा कुछ हुआ। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम क्षमा भी मांगते हैं। हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है कि हम क्षमा मांगें। लेकिन किसी के लिए, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लार्जर इंटरेस्ट, ताकि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, भाई बहन, एवं अगरतला में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सबके माता पिता यहाँ रहते हैं, सबके बच्चे इधर यहाँ पे रहते हैं, वो लोग सुरक्षित रहें। ये सिर्फ इसके लिए ही ये कदम उठाया गया कि एक कड़ाई के साथ हम थोड़ा सा इसको लागू कर पाएँ। কালকে যে ঘটনা হয়েছে আপনি আজকে বিস্তারিত বললেন এবং এটাও বললেন যে কারোর মনে যদি আঘাত পেয়ে থাকে আপনি ক্ষমা প্রার্থী। কালকে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পেয়েছি যে একটা অভিযোগই বারবার আসছে যে প্রথম বলা হয়েছিল যে বিয়ে হয়নি, তারপরে দেখা গেল বিয়ে হয়েছে, ওরাই আমাদের বলেছে যে বিয়ে হয়েছে। একটা জিনিস যে বলা হয়েছে যে মানে বাড়াবাড়ি হয়েছে, স্টেপটা ঠিক ছিল কিন্তু কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে, সেই কথা নেটিজনদের বলছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে বলছে। এই ব্যাপারে আপনি কি বলুন যে বাড়াবাড়ির পার্টটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখেন, বাড়াবাড়ি কেউ করতে চায় না। যদি কেউ নর্মালি দুজন যদি থাকে, আমার তো কোনো এরকম মতলব শখ নাই যে আমি রাত্রিবেলা 11টা 45 12টায় গিয়ে কোনো কেউ বিয়ের মধ্যে বাধা ডালবো। আমার কি ইন্টারেস্ট? ওখানে যেরকম পরিস্থিতি দেখা যায়, যখন লোক আপনার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করে, আমি যাচ্ছি ফর জেনারেল পাবলিক গুড। যদি ওখান থেকে যে ব্যাক রিপ্লাই শোনা যাচ্ছে, ইট ইজ ভেরি নেগেটিভ, দেন অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং we also tend to behave slightly in a heated up manner. So that is heat of the moment, something happens, but you have to see the intention. जो भावना है ये समझना चाहिए कि हम ये लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों की बेवकूफ़ी से, कुछ लोगों की केयरलेसनेस से, बाकी एक लार्जर नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा लोग तो चाहते हैं कि सावधानी से रहा जाए। उन लोगों को अगर उन लोगों को खतरा पहुंचता है, उनके हेल्थ को खतरा पहुंचता है, उनकी जीवन को खतरा पहुंचता है, ज़िंदगी को, तो ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। तो इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे। बाकी हमें पता है शादी ब्याह जो है हमारे धर्म में, किसी भी धर्म में बहुत सेंटिमेंटल विषय है। तो शादी ब्याह की रुकावट नहीं है। हम अभी भी परमिशन दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि आप शादी ब्याह करिए,
आपको रात के 10 बजे के बाद अगर हो रहा है अपने घर में कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा पार्टी करके 100 लोगों को इकट्ठा करके। आप एक बात सोचिए, शादी में अगर 100 लोग आते हैं, अभी 100 लोग का परमिशन दिया जा रहा है, जहाँ पे ज़्यादा केसेज है वहाँ 50 का दिया जा रहा है। ये 100 लोग अलग अलग परिवारों से आते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली आप मास्क ला गए तो खाना नहीं खा सकते, लोगों से बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकते। ये 100 लोग शादी के बाद 100 अलग अलग घरों में जाते हैं। इसमें से अगर एक आदमी ने भी फैलाया, ये 100 घरों में फैलता है। हर घर में उनके माँ बाप हैं, बच्चे हैं। इस बार तो छोटे बच्चे भी नहीं बच रहे हैं। 10 साल से कम के बच्चे, 30 से ज़्यादा बच्चे तो हमारे ज़िले में प्रभावित हो चुके हैं। तो ये किस तरीके से ये जस्टिफाइड है कि कुछ लोगों की लापरवाही को अलाउ किया जाए, यही कहना है हमें इस बार में। আরেকটা জিনিস ডক্টর যাদব, যে আপনি একজন চিকিৎসকও, আপনি চিকিৎসকও বটে এবং আপনি করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে কাজ করছেন। জেলা প্রশাসন আমরা দেখতে পাচ্ছি জেলাওয়ারি যে রিপোর্ট, পশ্চিম জেলা ভালো কাজ করছেন। একজন চিকিৎসক হিসাবে একদিকে বিয়েও হতে হবে, সামাজিক প্রোগ্রামও হতে হবে, আবার একদিকে করোনা পরিস্থিতিও, কোভিড যে কোভিড বিহেভিয়ারও মানতে হবে। এই মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আপনি কি বলবেন, কিভাবে আজকে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? আজকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এটা একটা ন্যাশনাল ডিজাস্টার হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আজকে বলেছে এবং বলেছে যে যারা হাই অফিসিয়াল আছে তারা কিছু করা উচিত, এই জায়গায় সুপ্রিম কোর্টও করবে বলছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি কি বলবেন যে এই যে একটা সিচুয়েশন, সামাজিক সমস্যা, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিভাবে সব কিছু মেনটেন করে, সব কিছু করে সব কোভিড পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করা যায়? देखिए, मुकाबला ज़रूर होगा, सभी लोग इस विपदा से बाहर निकलेंगे, लेकिन कम से कम क्षति के साथ, कम से कम नुकसान के साथ हम इसे बाहर निकल पाएँ, कम से कम लोगों की मृत्यु हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग, आम जो जनता है, सभी लोग नीचे की पोजीशन से लेके ऊपर के पोजीशन तक, एडमिनिस्ट्रेशन में भी और बाहर जो आम जनता है, सभी लोग अभी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने का समय है। सबको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक आदमी केयरलेस होता है तो ठीक है, अपना तो अपना खतरे में डाल ही रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को भी खतरे में डाल रहा है। आप लोगों को ये समझना होगा कि प्रशासन, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स, फील्ड लेवल वर्कर्स अपना सब कुछ छोड़ के, नींद छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के लगातार काम कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा स्वास्थ्य दफ्तर है, उनकी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। किसी को छुट्टी नहीं मिली है पिछले 6 महीने से, अभी फिर से कैंसिल हो गया। उसमें महिलाएं हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। वो आप लोग को वैक्सीनेट करने के लिए आपका टेस्ट करके आप लोग को एडवाइस कर रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव हो गए हैं, जो घर पे, उनको डेली टेलीफोन कॉल किया जाता है। टेलीफोन कॉल में भी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं कि डेली क्यों फ़ोन करते हो, बट फिर भी उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। आपसे पूछते हैं कि आपको कुछ तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। इतनी सब मेहनत करने के बाद अगर कुछ लोगों की लापरवाही से अगर हमें पीछे हटना पड़े तो ये गलत बात है। इसलिए हमारी सबसे अपील रहेगी, हम हमेशा बोलते हैं कि सभी लोगों को मिलके इसके साथ लड़ना है, तो सभी लोगों को हमें सहयोगिता देनी पड़ेगी। इसमें सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। अपना अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, बहुत सिंपल है। कोई नहीं बोल रहा है कि आप मतलब कुछ बहुत बड़ी मेहनत का काम करें, सिर्फ इतना ही है कि आप मास्क पहन के रखिए पूरे समय, भीड़ भाड़ मत करिए, सोशल इंटरेक्शन कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, शादी ब्याह, बर्थडे, एनिवर्सरी, लोगों के साथ पार्टी, ये सब होती रहेगी, फिर होगी। जब ये सब समाप्त हो जाएगा उसका मन भर के करिए। अभी रेस्ट्रिक्शन जो लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये कोई गवर्नमेंट को कोई बहुत आनंद नहीं मिलता है। इनफैक्ट प्रजातंत्र में तो गवर्नमेंट हमेशा बहुत फूंक फूंक के कदम रखती है। हमेशा ये सोचना पड़ता है कहीं जनरल पब्लिक नाराज़ तो नहीं हो जाएगी। इस वजह से स्टेप्स बहुत ही धीमे धीमे लिए जाते हैं। और अगर उतने से स्टेप्स में भी ये लोग कंप्लाई ना करें, इस बार कहीं कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया, सारा सामान आ रहा है बाहर से, सारा सामान, सब्जी, मांस, मछली, पिछले साल जो शॉर्टेज हो रही थी हर चीज़ का दाम बढ़ रहा था, वैसा नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ जो है प्रोडक्शन पॉइंट पे अगर कॉस्टली है, दाम ज़्यादा है, तो वो दाम ज़्यादा मिल रहा है। जैसे एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा, सरसों का तेल का दाम कुछ बढ़ा है। बाकी सब चीज़ें, गुड्स, जो फ्लो ऑफ गुड्स है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर एक्सप्लोजिव सिचुएशन होगी, जैसे आप लोगों को पता होगा आज बेंगलोर में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया, अगर ऐसा एक्सप्लोजिव सिचुएशन तक हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद तो इन सब का कुछ मतलब नहीं रहेगा। अभी हमारे पास मौका है, हम इसको रोक सकते हैं। त्रिपुरा में हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे एंट्री पॉइंट लिमिटेड है, हम चारों तरफ से लैंड मास से घिरे हुए नहीं हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर कल सील कर दिया गया है। एयरपोर्ट पे हम 100% टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी जिन लोगों के पास RT-PCR टेस्ट नहीं है, सबका टेस्ट किया जा रहा है। थोड़ी सी असुविधा हो रही है लोगों को, लेकिन 100% टेस्टिंग हो रही है। कल हमने 900 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं वहाँ पे, आज भी करेंगे। और आज भी सुबह से अभी तक 20 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं वहाँ पे। रेलवे स्टेशन पे हम 100% टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसके पास भी RT-PCR नहीं है।
जो लोग रोड के रास्ते घुस रहे हैं उनका उत्तर त्रिपुरा जिला प्रशासन वहाँ पे कंप्लीट टेस्टिंग कर रहा है। इतनी मेहनत आखिर अपने आप तो नहीं हो रहा, हमारे ही लोग हैं, त्रिपुरा के ही लोग हैं, हमारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, इनकी संख्या भी सीमित है। पहले इन्हीं सबसे नॉर्मल जो हेल्थ सर्विस चलती थी, अभी इन्हीं मैन पावर से हम इतना सारा काम करवा रहे हैं। तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। जो लोग अस्पताल में भी जा रहे हैं, कल जीबी अस्पताल में गया मैं, वहाँ पे 31 मरीज जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या जो थोड़ा ज़्यादा बीमार हैं वो लोग थे, उनसे मैं बात करके भी आया, सब प्रिकॉशन लेके ही गए थे। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि सब वहाँ का मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं। पिछली बार पहली बार नया नया हुआ था कोरोना वायरस, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, तो सबने अपनी तरफ से मेहनत करके काम किया, कुछ गलतियाँ हुई, कुछ सही हुआ। इस बार उसके मुकाबले हम चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छी तैयारी, हमें भगवान ने समय दिया है, त्रिपुरा के लोग भाग्यशाली हैं, यहाँ पे अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है कि प्रशासन की ऐसी हालत हो जाए कि समझ ही ना आए क्या करना है। अभी अगर हम थोड़े प्रिकॉशन लें, सभी लोग सहयोग करें, थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको मालूम है, बच्चों को भी मालूम है क्या है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर हम थोड़ा सा पालन करें तो शायद हमारी हालत वैसी नहीं होगी जैसी हालत अभी हमारे देश में अन्य राज्यों की हो रही है। दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, इवन अब गुवाहाटी में भी होना शुरू हो गया है, कोलकाता में होना शुरू हो गया है। तो इससे हमें बचना होगा, हम सब लोगों को मिल के बचना होगा। ডাক্তার যাদব, যে বিয়ে শাদীর যে মরশুম এখন চলছে, এটা কিভাবে করতে হবে, এটা মানে সিস্টেমটা যদি আবার একটু বিস্তারিতভাবে বলে দেন। যে এখন তো বিয়ে শাদীও চলতে হবে, সামাজিক অনুষ্ঠানও চলবে, কিভাবে, হাউ? इसमें देखिए, अब हम आप लोगों के लिए सेवा का काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है। आप लोगों के अभी इतने साल हमको त्रिपुरा में हो गए, हम ऑलमोस्ट त्रिपुरा के ही हो गए हैं, तो हम आप लोग के भाई बहन की तरह, बड़े भाई छोटे भाई की तरह, हम यही बोलना चाहेंगे कि इसको जितने सिंपल तरीके से अभी किया जाए। शादी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर लॉकडाउन या कोरोना वायरस बहुत पीक पे चल रहा है तब भी आप बड़ी पार्टी करें, 100 लोगों को बुलाएं। अगर प्रशासन 100 लोग अलाउ कर रहा है तो ज़रूरी नहीं आप 100 लोगों को बुलाएं, आप अपने घर में सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। आपका ये बहुत बड़ा योगदान होगा आपके राज्य के लोगों के लिए, यहाँ के हमारे राज्य के लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, कि हमने कम से कम पार्टी जाके नहीं की 150 लोगों को बुला करके। ज़रूरी नहीं है कि शादी इसी तरीके से की जाए कि उसमें 100 लोग आकर के सभी लोग डांस करें, सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं। ये आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप जगह जीवन रहेगा तो आगे आपको बहुत मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही जीवन खत्म हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आज आपकी शादी हुई तो आज ही ज़िंदगी खत्म, ऐसा तो नहीं है। ये बात मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ में भी आ रही है। अभी हमने एप्लीकेशन देखा, कुछ लोगों की मैरिज हॉल में सेरेमनी थी, वो लोग खुद अभी अप्लाई करके वॉलंटरली बोल रहे हैं कि अब हम मैरिज हॉल में नहीं करेंगे, हम अपने घर में करेंगे, सिर्फ हम अपने 10-12 रिश्तेदारों को बुला के करेंगे। दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। अनफॉर्चुनेटली ये इम्पोज नहीं किया जा सकता। मैंने बोला ये प्रजातंत्र है, अगर हम इम्पोज करने की कोशिश करेंगे लोगों पे तो लोगों के अंदर ऐसा फीलिंग आएगा कि ये गवर्नमेंट हमारे पर्सनल अफेयर्स के अंदर हाथ डाल रही है। इम्पोज नहीं कर सकते, बट हम रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन कर सकते हैं कि इसको सिंपलेस्ट तरीके से कम लोगों के साथ, जो आपके एकदम खास हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ आप घर में कर लीजिए। आपका लग्न मुहूर्त अगर रात के 12:30 बजे भी है, आप घर में तो आराम से कर सकते हैं, कोई नहीं मना कर रहा। लेकिन अगर आप मैरिज हॉल में 100 लोगों को बुलाते हैं, खिलाते पिलाते, वहाँ केटरर है, बैंड बाजे वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, तो इससे जो फैलने की संभावना है कोरोना वायरस की, ये बहुत ज़्यादा है। ये एकदम कॉमन सेंस की बात है, इसमें हम कोई बड़े रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि एकदम साधारण तरीके से आप लोग करिए। ये हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्य के लोगों के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा अगर आप एक सिंपल तरीके से सेरेमनी करें, घर में करें। पार्टी करनी है आपको, बड़ा रिसेप्शन देना है, आप 6 महीने बाद कर लीजिए, समय आएगा, फिर सब कुछ समय आएगा। আমরা আমাদের আলোচনা একদম শেষের দিকে, যেহেতু আমরা কালকের যে ঘটনা এটা নিয়েই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম, উনিও দুঃখ প্রকাশ করেছেন, ক্ষমা চেয়েছেন, এবং উনি বলেছেন যে গণতান্ত্রিক দেশে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলায় উনি বিহেভিয়ারটা বোঝাতে চেয়েছেন। যা সর্বশেষ ডাক্তার যাদব আপনার কাছে যেটা জানবো সেটা হলো, কালকে যাদের বিয়ে ছিল, আপনি বলেছেন বিয়েও হয়েছে, যাদের বিয়ে তারা হয়তো মনে কষ্ট পেয়েছে বা অনেকেই দেখেছেন যে এরকম ঘটনা, এই যাদের পরিবারে বিয়ে হয়েছে তাদের সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? नहीं, जो दूल्हा दुल्हन है उनके माँ बाप हैं, हम उनको बधाई देते हैं, उनके सुखी विवाहित जीवन की कामना अपनी तरफ से अपने मन से, अंदर मन से देते हैं। और
हम यही बोलेंगे कि भगवान उनको खुश रखे, सुखी रखे, कोरोना वायरस से मुक्त रखे, और उनके सभी परिवार वालों, जितने लोग आए थे वहाँ पे, वो भी स्वस्थ हैं। हम तो यही चाहते हैं हमेशा, हमारा सारा एफर्ट ही इसी तरफ है, यही बोलना चाहेंगे हम सिर्फ। অনেক ধন্যবাদ। হেডলাইন্স ত্রিপুরায় ডাক্তার যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা জেলাশাসক, উনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন, দর্শকদের বলেছেন, এবং আজকে নেটিজনের যা সমালোচনা করেছেন উনি তার প্রত্যেকটার জবাব দিয়েছেন। আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে কিভাবে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে, সমালোচনা হয়েছে, অনেকে আবার সমর্থন করেছেন, অনেকে কোশ্চেন করেছেন, সব বিস্তারিত জবাব উনি দিয়েছেন। আমরা দেখতে থাকবো হেডলাইন্স ত্রিপুরা। ভবিষ্যতে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আপনারা প্রশাসনকে সহযোগিতা করবেন, এই প্রত্যাশা আজকে আমরা হেডলাইন্স ত্রিপুরা পরিবারের পক্ষ থেকেও সবার কাছে রাখছি। নমস্কার, ধন্যবাদ ডাক্তার যাদব। धन्यवाद।